സംസ്കാരത്തിനും ജയ് ഹിന്ദ്. ഒന്ന്, ഇന്ന് വരെ അവരെ ജനം കണ്ട ലുക്കിലായിരിക്കില്ല ഇന്നിവിടെ. इंडियन कलर इंडियन फ्लैग के साड़ी तिरंगे वाली साड़ी पहनती है. രണ്ട്, അത് मैच इसमें पी के रामदास जाते थे. അമ്മ കുറെ കവലപ്രസംഗം നടത്തിയും എതിരാളികളെ ഗുണ്ടകളെ വെച്ച് കൊന്നുകള്ളിയും കറുത്ത മാസ്ക് അടിപ്പിച്ച് വെളുത്ത മാസ്ക് അടിപ്പിച്ചൊന്നും आ गई है. पहुंच गए हॉल में. काफी लोग आ रहे हैं. भयंकर है. हाँ उसे अरेस्ट करने के लाएंगे शायद. ऐसे गुनाह भी क्या किया उसने भी. गुनाह तो कुछ किया नहीं उसने. इन्हें खुद भेजा होगा ना शायद. This is nonsense. ഇതിവിടെ നടക്കില്ല പറ്റില്ല. So we are only carrying. शायद इसने खुद ही बुलाएंगे. नहीं कहते जब मुझे अरेस्ट करने आए. इससे कैसे पता था कि वो अरेस्ट करने आएंगे. नहीं? Yes ma'am. എന്താണ് എനിക്കെതിരെയുള്ള ചാർജസ്? അത് PMLA section 19 for money laundering. मनी लॉन्ड्रिंग. വന്നാ മതി. ഈ സെക്ഷൻസ് പ്രകാരം അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹാൻഡ് കഫ് ചെയ്യണമെന്നല്ലേ? അതെ മാം. പക്ഷേ तो हथकड़ी लगाएंगे. അയ്യോ ചെയ്യില്ലേ. ये उम्मीद जगाना चाहती थी वो है. ऐसे में लोगों का समर्थन उनकी पार्टी को ज़्यादा मिलेगा ना फिर. ഇതിക്കും അക്രമത്തിനും വർഗീയതയ്ക്കുമെതിരെ ഉയരുന്ന കൈകളെ അവരിങ്ങനെയാണ് ബന്ധിതമാക്കുന്നത്. പക്ഷേ സംസ്കാരത്തിനും ജയ് ഹിന്ദ്. ഒരു യഥാർത്ഥ നേതാവിന് അണികൾക്കുള്ളിൽ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ? അതെന്താന്ന് ഇപ്പം മനസ്സിലായ? ഒന്ന് ചത്ത് രണ്ടാമത്തതൊന്ന് ഒതുങ്ങിയപ്പോ വരുന്ന മൂന്നാമത്. परेशान हो गया. इसका भाई अब आ रहा है ना. इसको पता नहीं चला शायद. So, tell me once again, what's today's agenda? ഒന്നുമില്ല. എൻ്റെ വാർഷിക ദിനത്തിൽ നമ്മുടെ ഈ രാഷ്ട്രീയ കൈകോർക്കൽ ഒരു ജോയിന്റ് പത്രസമ്മേളനത്തിൽ നമ്മൾ അനൗൺസ് ചെയ്യും. സാറും ഞാനും. കാരണം ഞാൻ लेट करता अच्छा तरह. कोई जरूरत नहीं. मैं हिंदी जान भी लेता हूँ, बोल भी सकता हूँ. ओ उसको बिठाया नहीं. मतलब ये ऐसे क्यों चाह रहा था कि मैं साथ में रहूं. പ്രഥമ ദൂസരി പ്രവേശ जानना चाह रहा था क्या होगा. വിശാരദ്. എന്ത് കാര്യത്തിന്? ഒരവസരം വന്നപ്പോൾ മലയാളം कहाँ जा रहे हैं? इसको मारना तो नहीं चाहते हैं. ओ आगे लाइट लगी है. सेंसर थे लगे और आगे. Yeah, tell me. കാർത്തിക്
रोक दिया गाड़ी को। इस तरह से रास्ता ब्लॉक करना चाहते थे वो। ओ पीछे गाड़ियां आ गए। किसी ने जानबूझकर भेजा। ओ बेहतरीन गाड़ियां। मुझे लग रहा है किडनैप कर देगा। देखो गोलियां चलने लग गई। वो गाड़ी के नीचे छुपा हुआ है, देखो। पकड़ लिया इसको। इसी को लेने आ रहे थे वो। इसको भी गोली मार देते हुए हैंगर। ओ ले गया अब स्टीफन के पास। ये बचा हुआ है, देखो। Just before the attack, I got the information that Stephen is still alive. ये इससे भी बता दिया। Who's behind this? Do you know who I am? ये लूसीफर अब लूसीफर को कभी उसने ऐसे देखा नहीं होगा नहीं इस गेटअप में। ഒരു അലിഖിത നിയമമുണ്ട്. ഒരു രാഷ്ട്രീയ ദൈവം മരിച്ചാൽ അയാൾ തുടങ്ങി വെച്ച നന്മകൾക്ക് തുടർച്ച നൽകാൻ തീണ്ടാനേ പാടില്ല. പാർട്ടിയിലുള്ള നായ മരിച്ച ദൈവത്തിൻ്റെ മുഖഛായയുള്ള തൊലി നിറമുള്ള അയാളുടെ നിയമാനുസൃത സന്താനങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കാൻ നിനക്ക് 5 വർഷം പോലും വേണ്ടി വന്നില്ല. സംസ്ഥാനം ഭരിക്കുന്ന CM. सीएम इसने तो बनाया उसे। ये नहीं तो कहाँ से बनता सीएम? കടപ്പിച്ചും കറവുമാടുകളെ കറന്നും ഇവിടെ വരെ എനിക്ക് വരാമെങ്കിൽ ഇനി ഏതറ്റം വരെ എങ്ങനെ ആർക്കു വേണ്ടിയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷേ ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ഇന്ന് PK രാംദാസ് ഇല്ല. ഇതിനു മുമ്പ് ഇത് എന്നോട് जतिन बुला रहा है. जतिन फोन कर रहा है इसको। ये जतिन नहीं है. स्टीफन होगा। जानता हूँ बलराज. बलराज इसका असली नाम है। ചരിത്രം മുഴുവൻ എനിക്കറിയാം എന്ന് അവനോട് പറയണം. ബൽദേവിന് അവന്റെ ദുശാസനനെ വേണമെങ്കിൽ. देखो इसी ने गिरफ्तार करवाया. തെളിവുകളുടെ അഭാവത്തിൽ തള്ളിപ്പോയി എന്ന ഹെഡ്ലൈൻ എല്ലാ ന്യൂസ് ചാനലുകളും ഇന്ന് പ്രൈം ടൈമിൽ റൺ ചെയ്യും. ബന്ധനകളോടെ വന്നാൽ അവനുമായി ഞങ്ങൾ ബാക്കി വെച്ചൊരു കണക്ക് അവിടെ വെച്ച് തീർക്കാം. उस प्रियदर्शन को मतलब मालूम था कि ये भेजेंगे पुलिस को अरेस्ट करने के लिए उसे उसने खुद नहीं करवाया. मुझे लगा था खुद कराया उसने. നിന്റെ കരയിൽ അതറിയാവുന്ന ഒരാളെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. തന്ത. पहले ऐसे ही समझ रहा था उसे.
Hello. സയ്യിദ്, अच्छा जाहिद है उसका नाम ना? 23 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ നിനക്കൊരു വാക്ക് തന്നു. ओ और इसको मारेगा ये. अच्छा यही लड़का था वो. ये बहुत पुराना इंसिडेंट हुआ था. हाँ तो यही लड़का था वो जायद. पाकिस्तान. अच्छा तुम्हारे अब्बा का कत्ल किसने किया? अब दिखा रहे हैं उस वक्त का. हिंदुस्तान. तुम्हारे घर वालों को कत्ल गारत करके तुम्हें यतीम किसने किस्सा बनाया? वाले जहर बोरे इसके मन में है. तो कौन है तुम्हारी नफरत का बाइस? इंशाअल्लाह हर मुल्क में गूंजेगा अल्लाह. अच्छा टेररिस्ट है ये. इंडिया के खिलाफ भटका रहे हैं. यहूदियों की तबाही, हिंदुस्तान की तबाही. अल्लाह अकबर. ये उस इंसिडेंट का सहारा लेकर उन्हें आतंकवादी बना रहे हैं. देखो उनको ले जा रहे हैं कहीं. हमला हो गया. ओहो अच्छा तब शायद लूसीफर आया था. शायद उसने इन बच्चों को निकाला था शायद वहां से. ये शायद आर्मी में था ना ये. अच्छा आ रहा था ये. सबको छुड़ा दिया. अच्छा ये भी यही काम कर रहा था अब. हाँ ये भी बच्चों को छुड़ा रहा था. इसने भी यही चीज पूछी थी. अब्राहम उसका छोटा सा भाई भी मारा गया था नहीं. अच्छा 13-ാമത്തെ വയസ്സിൽ उसी നിന്നെ जगह पे എനിക്ക് चला गया. കിട്ടിയപ്പോൾ ഞാൻ നിന്നോട് ചോദിച്ചിരുന്നു, क्या कहा था उसने? रिवेंज. अच्छा इसीलिए फिर अब मारे गए उसे वो. നിന്റെ പക നിന്റേത് മാത്രമല്ലാതാകുന്ന ഒരു ദിവസം വരുമെന്ന്. ഇടാതെ സൂക്ഷിച്ച ആ പകയുടെ കനൽ അതെരിഞ്ഞടങ്ങണം. बदला से जो खुश वही इंसान. बाबा बाबा आप मुझे थोड़ा और वक्त दीजिए. Just give me a little. बाबा के मुंह से. अच्छा उसको किडनैप कर रखा ना इसने उसे भी. अगर उसे कुछ भी हुआ तो केरला वापस समंदर में समा जाएगा. ये आदमी पता नहीं क्यों मिला उसके साथ. वो इसके स्टेट को तबाह करना चाहता है. कितनी सारी गाड़ियां लेके जा रहा है. इतने सीएम के पास भी नहीं है जितने इसके पास है. हाँ. तो वहीं आ गया देखो. वहीं बुला रखा है ऐसे. उसी तरह से चला गया तलवारें लेके. अभी भी वही सारी हरकतें इसकी. उसी जगह पे बुला रखा उन्होंने से. ओ
कैसी कर दी उसके भाई की हालत। मुन्ना अच्छा बॉम्ब लगा रखा शायद उस पे। अच्छा भयंकर। उड़ा दिया भयंकर। सीधे चीथड़े उड़ गए उसके। और गुस्सा हो गई बहुत भयंकर। उसी के सामने उसके भाई को मार दिया। तू कौन है रे मादर? ओ आके लूसीफर। तेरी तकदीर। उड़ा दे इस हरामजादे को। वाह छोटे मोटे गुंडे ला रखा। निशाना लगा सब पे। एक ही झटके में खत्म कर दिए। बैठी ऊपर। ये सब तो छोटे मोटे गुंडे उसके सामने। गेट बंद कर दिया। ओ आ गया। अब आ गया। अब तो साथ मिलके मारेंगे उसे। फालतू गया वो मरने के लिए। बंदूक उठाता। उसकी बुरी मौत आएगी। पीछे से आगे वो। कोई परवाह नहीं, दोनों की बन जाए। मारने वाला था उसे। उसकी बुरी हालत करेगा वो ये। कैसा वैसे चला। अच्छा आप मार देंगे पता भी नहीं चलेगा लास्ट का फिर है दलदल में। सईद अली अहमद मसूद मलबारी नहीं। ये मारेगा अब गोली। मार दिया। बलदेव लापता। न्यूज फैला दी कर लेता है। उसके कार्यकर्ता कैसे भड़क गए, दंगे करने लगे। फिर से उसी तरह से दंगे कर रहे हैं। Hilala, I need to get out tonight.
दुबई रिस्की ആണ് ये भागना चाहता है। अब इसे ही मारेंगे शायद वो। मार दिया ऐसे। मार दिया। फिर किसने मारा होगा? चेहरे पे मास्क रखा है उसने। कहीं उसी ने तो नहीं मारा होगा? वही जिसे उन्होंने बैठने नहीं दिया था गाड़ी में। ना वो नहीं है ये पता नहीं कौन है। ये कौन है? वही रैली में शामिल हो गया। अब डर गए। सबको मार दिया। ബോംബ് വെച്ച് തകർക്കാനുള്ള തീവ്രവാദ ശ്രമം ATS-ഉം കേരള പോലീസും ചേർന്ന് തടയിട്ടു. ഒരു അജ്ഞാതന്റെ ഫോൺ കോളിനെ वो बल्दे उड़ाने वाला था। രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ചില സത്യങ്ങളുണ്ട്. പൈതൃകത്തിന്റെ പിൻബലത്തോടെ അധികാരത്തിന്റെ കോണിപ്പടികൾ പടവുകൾ അവർക്കായി ഒരുക്കിയെടുത്ത പൂർവികരുടെ ജീവിത സത്യം. ആ പടവുകളിൽ വീണ ഓരോ നൽകി ആ കോണിപ്പടിക്ക് ചാന്തിട്ടവന്റെ സത്യം. സംഭവിച്ചതിനെ ജനങ്ങളോടും ദേശത്തോടുമുള്ള ഒടുങ്ങാ കടമയാണെന്ന സത്യം. ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് എന്ന സത്യം. अपने दिल से बोलेंगे न्यूज। രവാണ് എന്ന സത്യം. കാലാകാലങ്ങളിൽ ദൈവപുത്രന്മാർ ഈ ഒന്നുകിൽ പുനർജനിയില്ലാത്ത മഹാപതനം, അല്ലെങ്കിൽ എന്നേക്കുമായുള്ള छोड़ दिया इसको है। अरे समुद्र में रखा है इसको भयंकर। नहीं हेलीकॉप्टर से भेज रहे हैं शायद। अच्छा पता न चले था कि कहाँ पर रहे हैं। നിന്റെ മുന്നിൽ ഇനി രണ്ട് വഴികളേ ഉള്ളൂ. അനുസരണയുള്ള ഒരു പാർട്ടി പ്രവർത്തകനും PKRന്റെ മകനുമായി മാത്രം ജീവിക്കാം. നായരെയും ബൽദേവിനെയും പോലെ വിവാദമായ ഒരു ഫ്രണ്ട് പേജ് വാർത്തയായി അവസാനിക്കാം. खत्म हो सकते हो। अब संभल गया होगा शायद ही। Boris, When you wiped out the Kabuga cartel, अरे उसे पकड़ लिया उन्होंने। a mole for a mole. मार दिया उसे। अच्छा कब तो उसका उसका भाई है। उसे भी मार दिया जतिन को है। ओ भयंकर। तो खतरनाक है। उसने जतिन को भी मारा और उसे भी मार दिया साथ में। Abra, Kure, ओ L3 लूसीफर 3 द The बिगिनिंग। beginning. चाइना का दिखा रहे हैं आप।让他有故事。我是 अच्छा लूसीफर के बारे में सब जानकारी पता की उसने है। बॉम्बे 1981। 1981 का दिखा रहे हैं। किसको मारने आ रहे हैं? अच्छी बाजार में।
यही था शायद लूसीफर ना। तू इधर घुस आएगा, हमारे आदमी को धोएगा और निकलेगा। अब शायद L3 में इसकी कहानी दिखाएंगे नहीं कि कहाँ से आया था ये, कौन था ये। ओ मैन, सबको एक ढेर में कर दिया। हाँ? पता नहीं खो रही है, ऐसे लग रहा ना। तो ये थी L2 एम्पुरान फिल्म। मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी। फिल्म की कहानी मतलब काफ़ी वो थी, इंटरेस्टिंग थी। और जिस तरह से इस फिल्म को आगे बढ़ाया गया है लूसीफर को एम्पुरान के ज़रिए, तो वो काफ़ी मज़ेदार था देखना। और फिल्म की कहानी मतलब ये जो फिल्म स्टार्ट होती है तो बहुत ही मतलब एक तरह से इमोशनल एक तरह से मोमेंट के साथ स्टार्ट होती है। जिस तरह से जो वो शायद दंगे चढ़ रहे होते हैं और जिसमें कि मुसलमानों को मार रहे होते हैं, शायद हिंदू और मुस्लिम भी बीच चढ़ रहा होता है। और उसमें वो जो कुछ लोग होते हैं वो मुसलमानों को मार रहे होते हैं। और फिर जब वो उन्हें एक औरत बना देती है अपनी हवेली में, एक बूढ़ी औरत, तो वो वहाँ भी घुस जाते हैं। और फिर बलदेव वहाँ भी उन्हें नहीं छोड़ते। वो आर्मी थी, वो बलदेव की आर्मी, वही गए उधर, उन्होंने सबको मार डाला। एक गुंडा था ना वो, और उसने मतलब सबको मारा उसने, वो और उसका भाई। उन्होंने मतलब किसी को नहीं छोड़ा, चाहे वो औरतें हों, बच्चे हों, और पुरुषों को तो मार ही रहते हो, पर उन्होंने लेडीज़ को भी नहीं छोड़ा। तो मतलब बहुत ही मतलब वो क्या उन्होंने एक तरह से ना इतना ज़्यादा गलत मतलब बेकसूर लोगों के साथ। और फिर जो लास्ट में जो रिवील हुआ, वो जो जायद है वो वही लड़का था जो उसमें बचा था। तो वो जो चीज़ रिवील हुई थी ना आखिर में, तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी इस मूवी में देखनी। थोड़ा अलग लगा इस फिल्म में वो चीज़। और जायद एक तरह से अगर वो टेररिस्ट के साथ रहता तो बन चुका था फिर वो टेररिस्ट। हाँ, उसे तो टेररिस्ट बनाने वाले थे वो, आतंकवादी, क्योंकि वो उस इंसिडेंट का फ़ायदा उठाकर उनके मन में नफरत भर रहे थे। वो भी इंडिया के लिए नफरत भर रहे थे। और वो उन्हें ये बता रहे थे कि इंडिया मतलब इंडिया ने ये सब किया तुम्हारी फैमिली के साथ। और उससे मतलब अगर लूसीफर नहीं आता तो वो फिर आतंकवादी बन जाते। उसने मतलब उन्हें छुड़ाया। लूसीफर ने उसी को जायद को एक नई राह दी। हाँ, उसने उसे सही रास्ते पे लाया। हाँ, तब जाके उससे और जो भी बच्चे थे होंगे उसमें जिन्हें वो ले जा रहे थे। जो इसका पहला पार्ट जो था लूसीफर, उसमें कुछ बताया नहीं गया था उसके बारे में ना, जायद की कहानी कुछ नहीं दिखाई गई थी। तो इस फिल्म में उस चीज़ को रिवील किया गया कि जायद कौन है और उसका क्या कनेक्शन है लूसीफर से, और वो क्यों लूसीफर के साथ मतलब एक मतलब भाई की तरह रहता है और उसको हर मुसीबत से बचाता है और उसे एक तरह से मतलब प्रोटेक्ट करता है और उसकी एक राइट हैंड की तरह है वो। तो वही चीज़ इस फिल्म में रिवील हुई। और हमने वो देखी हुई थी लूसीफर, इसलिए मतलब हम अच्छे से कनेक्ट कर पाए ना इस फिल्म को। और लूसीफर 3 लास्ट में रिवील हुआ कि लूसीफर 3 आएगी। अब लूसीफर 3 द बिगिनिंग लिखा हुआ। तो यानी अब शुरुआत की कहानी, पूरी कहानी दिखाएंगे क्या वो। अब लास्ट में उन्होंने वहाँ पर भी छोड़ा, जो उसे फ़ोन करता है चाइना का आदमी, नहीं बोलता वो, उसने मार दिया था फिर उसको, जो उसका सीक्रेट एजेंट था लूसीफर का। तो अब उसकी कहानी दिखाएंगे कि उसकी कहानी दिखाएंगे जब लूसीफर बचपन में था।
नहीं हो सकता दोनों चीज़ दिखाएं। दोनों चीज़ें मिक्स करेंगे ऐसा लगता है मुझे। मतलब लूसीफर का जो बचपन था वो भी और दिखाएंगे। उसके मतलब उसकी कहानी क्या है, लूसीफर की कहानी भी तो उन्होंने दिखाई नहीं ना। केवल वो जो पार्टी है केसीआर की थी ना पार्टी, तो उसकी पार्टी में जिस तरह से मतलब जो भी कुछ चल रहा होता है और फिर लूसीफर उन्हें बचाता है, तो अभी तक तो ये दिखाया गया। मतलब इंडिविजुअल लूसीफर की कहानी नहीं दिखाई उन्होंने, ना ही फर्स्ट पार्ट में दिखाएगी ना ही इसमें दिखाएगी। अब उसका मतलब फ्लैशबैक क्या है शायद वो दिखाएंगे, और जो भी उसका जो मिशन होगा आगे वाला शायद वो भी चलता रहेगा। लूसीफर मतलब हमेशा आ जाता है वो जब भी मुसीबत होती है। उसकी बहन है ना, बहन ही थी वो। हाँ, एक तरह से उसकी बहन ही है वो। हाँ। और हमेशा उसकी मदद की उसने। फर्स्ट पार्ट में भी जब उसी का हस्बैंड मतलब सबसे बड़ा विलन था, तो तब भी लूसीफर ने उसकी मदद की थी। और उसने उसके भाई को वो बनाया था सीएम। हाँ, पर बाद में उसका भाई वो हो गया था, उसी ने वही करप्ट हो गया था और उसके साथ मिल गया था, उसी बलदेव के साथ। तो फिर दोबारा उसे आना पड़ा, और इस वाले पार्ट में भी उसने उसे मतलब बचाया, और उस बलदेव को भी उसने मतलब एक तरह से जो उसका बदला जो था, जैद का जो बदला था, वो भी उसने लिया। तो मतलब फिल्म काफ़ी अच्छी है, और फिल्म मतलब एक तरह से बांधे रखती है, ऐसा कुछ नहीं है कि। और जिस तरह से इस फिल्म में जो एक्शन सीन्स हैं वो बहुत मतलब अच्छे दिखाए गए हैं। टॉप लेवल के एक्शन सीन है, और बिल्कुल ऐसे शूट किया गया है जैसे कोई हॉलीवुड फिल्म देख रहा हूँ। और बिल्कुल वैसा ही फील आ रहा था जैसे हम कोई हॉलीवुड फिल्म देख रहे हैं। मतलब बहुत अच्छे से दिखाए गए थे एक्शन सीन्स, और इसका जो बैकग्राउंड म्यूजिक था वो भी बहुत अच्छा था, और बाकी एक्टिंग भी सबकी अच्छी थी, चाहे वो मोहनलाल सर हों या टोबिनो थॉमस हों या वो प्रिया था ना उनका नाम, उसकी बहन रहती है प्रिया हो, या सुकुमार हो। तो वो ही काफ़ी अच्छी है, और थोड़ा सा लंबी है लेकिन मेन पॉइंट तो दिखाए रखे थे फिल्म में। और बाकी लूसीफर कहाँ रहता है ये अभी मिसिंग है, ये चीज़ें ये शायद लूसीफर 3 में दिखाई देंगी कि लूसीफर कहाँ जाता है हमेशा, और कौन कौन से मतलब उसका ठिकाना कौन सा है, और उसके मिशन कौन कौन से आते हैं, जो हमेशा वो मतलब इंडिया से बाहर ही रहता है गायब। तो मतलब फिल्म काफ़ी अच्छी है, और इस फिल्म की जो स्टार्टिंग भी थी वो बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग थी नहीं। मतलब जो चीज़ें उसमें दिखाई गई, किस तरह से वो मतलब बेगुनाह लोगों को मार रहे थे, तो स्टार्टिंग बहुत वैसी होती है इसकी ना, इंटेंस होती है। और फिर उसके बाद जिस तरह से फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है, फिर वही उसी कहानी से फिर जुड़ जाती है फिल्म जो लूसीफर में चल रही थी, वही पॉलिटिकल पार्टी, और उसमें उन दोनों की एंट्री होती है जिन्होंने वो सब उन बेगुनाह लोगों को जो मार रहे थे। तो मतलब फिल्म धीरे धीरे इंटरेस्टिंग होती जा रही थी नहीं, और जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ रही थी तो और ज़्यादा मतलब वो हो रहा था, आगे देखने को लेकर एक्साइटमेंट थी कि आगे क्या होगा और आगे क्या करने वाले हैं। और जिस तरह से मतलब इसमें जो भी कुछ पॉलिटिक्स चल रही थी वो बहुत इंटरेस्टिंग थी, और जिस तरह से लूसीफर की एंट्री होती है तो और भी गजब की थी। जिन्होंने बलदेव का कैरेक्टर इसमें प्ले किया है वो पहले दिखते थे वो साउथ की फिल्मों में, कुछ टाइम से नहीं दिख रहे हैं वो भी काफी अच्छी एक्टिंग करते हैं, बॉलीवुड में ही काम कर रहे हैं वो। इसी फिल्म में मैंने देखा इन्हें अभी फिलहाल, तो काफ़ी कमाल की एक्टिंग लगी, और जो डायलॉग बोले थे वो काफ़ी दमदार तरीके से बोले थे। मतलब पूरा विलन का फील करवा रहे थे, एक उस टॉप लेवल का एक विलन होता ना। एक्टिंग सबकी अच्छी थी, चाहे वो विलन हो या हीरो हो। मतलब मोहनलाल सर और सुकुमार, क्या उनका नाम, पृथ्वीराज और प्रिया दर्शनी था ना, प्रिया था
मंजू वारियर है उनका नाम। हाँ, मतलब फिल्म में कह रहा हूँ मैं, फिल्म में प्रिया था उनका नाम, और टॉविनो थॉमस, मतलब सबकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी। और फिल्म का जो वो था ना एक बैकग्राउंड म्यूजिक, वो काफ़ी अच्छा था, बांधे रखने वाला बीजीएम। अगर बैकग्राउंड म्यूजिक ना हो तो फिल्म एक स्लो से लगती है। मतलब बैकग्राउंड म्यूजिक का बहुत अहम रोल होता है फिल्म को बांधे रखने के लिए, ताकि ऑडियंस फिल्म में बनी रहे। और फिल्म में जो मतलब जिस तरह से शूट किए गए थे ना सीन्स, वो बहुत ही अमेजिंग थे, और बिल्कुल हॉलीवुड लेवल का फील दे रही थी फिल्म। और फिल्म को जिस जिस लेवल पे बनाया गया ना, एक मतलब फिल्म का लेवल बहुत ही अच्छा है एक्शन के मामले में, और जिस तरह से इसकी सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है, और कहानी भी अच्छी है, और बाकी इंटरेस्टिंग है फिल्म। तो हमें मूवी पसंद आई है। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।